जब लीवर्स पॉपकॉर्न में आए तो हंगामा हो गया। हा 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 हा, हंगामा हो गया, हंगामा। For all film related interviews, reviews, and content, please like and subscribe to Pooja Talwar. You can also follow me on Twitter and on Instagram. Popcorn. Jamie, have you often heard that or had said to people like, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? मेरा popcorn. I didn't want to tell people मेरा बाप कौन है because all my life, school and college, I never told anybody ki who my pop was. I always wanted to keep it a secret because then there were so many other questions that people wanted to ask. Is he funny? What does he do in the morning? Is he always funny at home? How does he eat food? What does he do? Does he always say jokes? There were so many things that people were curious about growing up. So I never wanted to tell anybody. And now I can't get rid of this question and this and him being around me all the time. Obviously, now just after the Lever surname is attached to mine, I can't escape it. You can't escape it. Absolutely. Johnny, sir, it's such a pleasure to see you. I mean, you made cinema such an interesting experience for all of us. So, what is it like to work with your daughter? आप इसको कहते हो तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तेरा बाप हूँ. मैंने बेटी के साथ काम करते हुए किसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा ही लगेगा, बिल्कुल खुशी होती है, मजा आया है, एंजॉय किया, एंजॉय कर रहा हूँ. बेटी और हम लोग साथ में बहुत हम लोग स्टेज शोज बहुत किए, हम लोग लाइव शोज काफी किए हैं और मूवी पे काम करने का जो है वो मेरे ख्याल ये पहला मौका था ना. पहला मौका है, पहला मौका. हाँ, पहली बार हम लोगों ने काम किया तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत टेंशन हो गई थी मुझे भी और उसको कितनी टेंशन क्या पूछ लो, बट मुझे भी टेंशन हो गई थी बराबर करेगी कि नहीं करेगी. बात ये है आर्टिस्ट तो है लेकिन ये तो बड़े आर्टिस्ट लोग और भी हैं, मैं हूँ, मैं तो छोड़ो, लेकिन दूसरे आर्टिस्टों के साथ काम करने में कहीं नर्वसनेस में काम अच्छी तरह कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये टेंशन तो रहता ही है. लेकिन बेटी गॉड गिफ्टेड है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है तो कर ली. एक बार देखा मैंने, वाह, मैंने तो कर सकते, नो प्रॉब्लम, छूट गया. फिर बाद में अपना काम करने लगी, बात तो कुछ सोचना ही बंद कर दी, रोज में खुल गई. खुशी होती है कोई तारीफ करता है बेटी की. आजकल तो मैं जहां भी जाता हूँ बाहर तो सर आप तो ठीक है मगर आपकी बेटी माफ करना. Wow, Jamie, they always say, you know, big shoes to fill. You managed to like fill and like are outgrowing them also. No. I'm working hard towards it. It's not easy because you know, being his daughter, there are so many expectations and you know, and people expect a lot because it's like it's for the audiences. It's like their Johnny Bhai is a member of the family. You know, somebody they really love. He's been a friend to the audiences, no, a funny guy who's been in the family who entertained them. He's been that person. So log expect karte na mujhse bhi ki acha बेटी भी she should do well or she should, you know, equally funny होनी चाहिए या फिर उनसे ज्यादा. तो expectation तो बहुत है but बस I just kept working hard, you know, and I feel like now finally people can see me for me and they really appreciate my work, so it feels very good. Feels very good. And Johnny sir, let me tell you, many times पिक्चरें आपको पता थी ना कैसे बनती थी. पिक्चर देखने के लिए एक्टर के लिए नहीं जाते थे. We used to go to watch for you because वही है ना, आपके जो सीन्स थे वो पैसा वसूल थे हमारे लिए. पिक्चर की स्टोरी हीरो ने क्या किया कुछ से कोई लेना देना नहीं. बट अभी यू नो अर्लियर व्हेन यू नो बैक इन द डे जब शुरू हुआ था, महमूद साहब थे, जॉनी वॉकर थे, एक जो कॉमिक था ही वाज उसका स्लॉट था. मगर आज का जो हीरो है हमारा, वो कॉमेडी भी करता है, वो रोता भी है, वो मारता भी है, वो पीटता भी है, वो सब कुछ करता है. सो डू यू समवेयर मिस बिकॉज the comedian or the person who made everyone laugh, he was that welcome break in the narrative. He sometimes had a very important role also to play. आप मिस करते हो वो? बिल्कुल मिस करता हूँ मैं, बिल्कुल मिस करता हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ ना कि कोई कॉमेडियन आए. अब वो क्या है कि कॉमेडी है ही नहीं तो कॉमेडियन क्या करेगा? कुछ लिखा हुआ ही नहीं है,
कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं है, तो वो कॉमेडियन आगे क्या करेगा, वो भी सीरियस होकर सीरियस रोल करेगा वो, जबकि कॉमेडियन ने लाइफ में सीरियस हो जाएगा और सीरियस रोल करके चला जाएगा। तो ऐसा मौका, ऐसा मतलब टाइम आ गया है, क्योंकि कॉमेडी राइटर्स गायब हो गए, लिखने वाले नहीं है। पहले के टाइम में क्या था, लिखने वाले होते थे और फिर ये करने वाले हमारे जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, किशोर कुमार जी, इनका अपनी तरफ से इनके इनपुट्स होते थे बहुत बेहतरीन, एडिशन ऐड करते थे अपने कुछ डायलॉग, अपने बातें, तो उससे निखर के आता था। वो चीजें अभी याद करते हैं। फिर मेरा वक्त आया, मेरा जब आया तो कॉमेडी तब तक खत्म हो चुकी, फिनिश हो गया। महमूद भाई, किशोर बटार था, जगदीप साहब थे, जगदीप साहब भी फिर थोड़ा सा कम हो गए। अब मैं आ गया तो मेरे पे जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि नए नए हीरो आ गए, तो उनके साथ में एक नया लड़का भी चाहिए जो कॉमेडियन है कि नहीं। जैसे शम्मी कपूर साहब हुआ, धर्मेंद्र जी हो गया, महमूद साहब आ गए साथ में, तो उसी तरह बाकी मैं मिथुन चक्रवर्ती थे, उसमें जगदीप साहब आ गए थे, है ना। अब उसके बाद जो नए आएंगे तो जॉनी लीवर आ गया, हीरो के साथ चाहिए ना, तो जॉनी लीवर आ गया। अब जॉनी लीवर आ गया तो मेरे टाइम पे राइटर लोग भाग गए, सब राइटर गायब हो गए, टीवी चैनल शुरू हो गए थे कुछ, तो वो लोग वहां जाके बिजी हो गए। तो वहां पे टीवी चैनल लोगों एक ही पैसे लोग को अच्छा माल मिलता है यार, कि पूरी फिल्म लोग को पैसे देते रहते, रिलीज के बाद भी पैसे मिलते नहीं है। तो कॉमेडियन जो है वहां लिखना शुरू कर दिए, कुछ कॉमेडी शोज लिखना शुरू कर दिए, तो वो पता नहीं क्या हुआ, ऐसा हो गया कैसा होगा, राइटर्स गायब हो। अब मैं फिर एक मैं बताना पड़ रहा मुझे, 92 में जब मैं इंडस्ट्री में फेमस हुआ बाजीगर से। किसका फोन? उसके पहले तेजाब, जलवा में जो किया उसमें भी आइटम्स मेरे थे, वो कैरेक्टर डाला हुआ था ही नहीं एक्चुअली, जलवा में मुझे डालना पड़ा, कैरेक्टर था ही नहीं। अरे यार उसको एक बना देते, जॉनी लीवर चाहिए यार, जॉनी लीवर को डालो, तो मुझे डाला, तो क्या बनेंगे आप, अच्छा आपको मद्रासी बना दे, ओके मद्रासी, मुझे मद्रासी बना दे, क्योंकि मुझे लव 86 में मद्रासी बनाया था, तो लव 86 से मुझे जलवा मिली, तो बोले उसमें मद्रासी तुमने कमाल किया, इसमें मद्रासी कुछ करते अपन, तो मद्रासी का कर दिया उन्होंने। तो ये हो गया। उसमें पर जो आइटम वो टीवी पे जो मैं करता हूँ सब पूरा वो टीवी का जो आइटम था वो एक सीरियल का आइटम बना के मैंने पेश किया था, वो मेरे ही आइटम्स थे। फिर वो तेजाब में भी बहुत कुछ जोक्स वगैरह जो है मेरे थे, करते 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 फिर आ गया बाजीगर में राइटर था ही नहीं, पूरा सेट पे जो कुछ सेट पे हुआ, तो मेरे पे ऐसी जिम्मेदारी आ गई, तो मैं क्या करूं, राइटर था ही नहीं। फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद में फिर मैंने 10 साल मैंने काम किया, 90 to 2000 मेरे बगैर पिक्चर नहीं बनती थी। सही है। तो पिक्चर में जॉनी लीवर चाहिए, जब तो मैं शो में बहुत बिजी होता था, अरे यार वो अमेरिका जाता रहता है, उसका 4 दिन, बोले उसके बाद सिर्फ 4 दिन है, 4 दिन में उसका काम निकाल लो यार, उसके बाद पता नहीं कहीं और चला जाएगा, तो वो 4 दिन का काम निकाल के पिक्चर में डाल देते थे, कहीं ना कहीं फिट कर देते मेरे को। तो ऐसा काम किया मैंने, कहीं कहीं किया और कहीं कहीं मैं कर नहीं पाया, करेक्ट रोल नहीं कर पाया मैं, समझे कि नहीं। जैसे महमूद साहब, किशोर कुमार जी करते थे, जॉनी वॉकर साहब करते थे, ऐसा मुझे करने, बिकॉज शोज में बिजी था, करते करते क्या हो गया, फिर मैंने कहा 2000 के बाद में मेरा डाउनफॉल आ गया। फिर सेम उसी तरह नए हीरो आएंगे, उसमें नए कॉमेडी चाहिए, है ही नहीं कोई, सिंपल सी बात है ना। फिर नए हीरो आएंगे, नए आए तो उनको चाहिए ना भाई, तो उनके साथ तो नए कॉमेडी चाहिए, मैं मैच नहीं करता हूं उनको। फिर मैं भी अगर 12 साल मैंने काम नहीं किया, 12 साल के बाद 2013 में ऑल द बेस्ट आई, गोलमाल मेरा कमबैक हुआ। फिर मेरा कमबैक हुआ, तो उसमें कमबैक में क्या होगा, मुझे राइटर्स मिल गए, उसमें मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ये ऑल द बेस्ट, गोलमाल, इसमें कौन थे राइटर्स, फरत जो हमारे डायरेक्टर है पॉपकॉर्न के, राइटर भी वही है, स्क्रिप्ट उनकी है ये। और हेरा फेरी में नीरज वोरा की राइटिंग बेस्ट राइटिंग उसने, ताड़पत्री, छोटा छतरी, ये सब उन्होंने किया। तो अगर राइटर्स मिलने से क्या हुआ, हम फिर आगे
फिर उसमें क्या होता था, राइटर्स होते थे और एक्टर अपनी तरफ से, मैं भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ डालता हूँ, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये होने से फिर हमने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा फिर हमने काम किया जो हुआ। और आपने भी कहा जैसे आपको देखने लोग जाते थे, आपको देख के लोग खुश होते थे, तो उसके पीछे मेहनत है। तो हम लोगों को ये है कि राइटर अगर लिखा हुआ है तो आर्टिस्ट उस पर कुछ करेगा। तो फरहत भाई जैसे राइटर्स हों तो वाकई इसमें बात होती है। तो आज पॉपकॉर्न की बात निकलती है तो पॉपकॉर्न के लिए हम खड़े हैं, और पॉपकॉर्न आप देखिए, पॉपकॉर्न में आपको मालूम पड़ेगा कि फरहत साहब ने क्या कमाल किया है। Awesome. But इसलिए Jimmy, सभी लोग, जी, सतीश कौशिक जी, हमारे शुक्ला जी, सौरभ जी, सतीश कौशिक जी तो समझो कि वो है हमारे बीच में, वो गए नहीं है। वो ऐसे कहते हम तो मानते नहीं कि वो गए हैं, समझे कि नहीं, यकीन नहीं आता कि वो चले गए। इतने खूबसूरत उनका इतना स्वीट रोल है उनका इस पिक्चर में, और क्या टाइमिंग है उनकी कॉमेडी की टाइमिंग क्या है, अलग ही है, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। आपको पता नहीं कि उस आदमी ने इस पिक्चर में क्या किया है। बहुत अच्छा काम किया, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी उन्होंने, क्योंकि राइटर अच्छा हो ना तो एक्टर करता है। absolutely. सब एक्टरों का काम इतना अच्छा है इसके अंदर। और वो मैं बार बार कहता हूँ कि राइटर स्क्रिप्ट अच्छी हो तो मजा आता कॉमेडी का। तो मैं अभी इस पॉपकॉर्न को मैं मिला रहा हूँ पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, कितना पड़ेगा, उन लोगों से मिला दूंगा। क्योंकि क्या है कि लाफ्टर 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 लाफ्टर, हर बात पे लाफ्टर आता है, वो बहुत जरूरी है। तो वो ऐसा राइटर फरहत है, और ऐसे राइटर जो है ना और भी आने से कॉमेडी बाहर आएगी और कॉमेडियंस भी बाहर निकल के आएंगे। Absolutely. Ji. Jamie, how tough is it today for you? Because he comes from a time where he's experienced it all, but for you, for making it on your own, how tough really is it? And because now he was one of the first stand-up comics, they used to say. Here, now you have everyone, and now thanks to the smartphone, anybody's putting up a reel and doing something. Yeah. Somebody, how tough is it? And it's not easy because people feel comedian है ना, वो तो हमेशा हंसते रहेंगे. It's never. I'm sure you get a lot of that. हाँ, Jamie, आज कैसा है? Yeah, I mean, as a comedian, you're expected to be funny all the time, even when you don't feel like it. I know that so many times you're traveling, and it's at odd hours, at 4 a.m. in the morning, 5 a.m. in the morning, and I've seen people, bump into us and expecting us to say something funny, mostly sometimes from daddy, या फिर मुझे बोल देंगे, अरे वो आप जाते जाते वो आशा जी की हंसी करके जाओ ना, जाते जाते वो फराह खान का कुछ बोल के जाओ ना. So people expect us to be funny all the time, or expect us to say something, funny all the time. And that is, I think, it's the challenge of being a comedian, but I don't think it is so much of a problem. I don't see it as a problem. I see it as a very positive thing, because you know what it is when you see an actor, you hesitate a little bit. When you see an actor, you hesitate कि आप, can I go, मैं इनसे मिल सकता हूँ कि नहीं, can I go, मैं हाय बोल सकता हूँ, थोड़ा आपको नर्वसनेस लगेगी. बट एक कॉमेडियन को जब आप देखेंगे ना, तो आपको इंस्टेंटली ऐसा लगेगा ये तो फनी गाय है, लेट मी गो से हाय टू हिम, जाके मिलो यार, मैं फोटो क्लिक करा लूं, या इनसे वो बात करूं, या मैं उनको वीडियो के बारे में बताऊं. एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल, बिकॉज एक रिलेशनशिप फ्रॉम of a fan with a comedian is more like a friend. So I feel like it is an honor to be a comic. It is a good thing to be able to do what I do, because I can have that relation with my followers, with my fans. So that is a beautiful thing. And I saw that growing up also. Growing up, I saw how my dad's fans were they were like, Johnny, bye, we love you, Johnny, sir. And they were so open, they were so comfortable with him. But with maybe with an actor or an actress, they would be a little hesitant, little nervous. Absolutely, I totally get that. Tell us one quirk about your dad that no one else knows. सबको तो वही आपको पूछते होंगे ना, घर में हंसते रहते हैं. And usually they say dads who are comics and make people laugh are the strictest. Yeah, he is quite strict. He's a perfectionist in many ways. He's very particular about things. हर चीज को लेकर, अपने खाने को लेकर, या मॉर्निंग रूटीन, या उनके वॉक्स डेली, बहुत डिसिप्लिन्ड है.
एक चीज दैट मे बी लोगों को नहीं पता होगी डैडी के बारे में, इज ही लव्स नंबर्स एंड ही लव्स कैलकुलेटिंग. हर चीज बॉक्स ऑफिस कैलकुलेट ट्रेड करना, एनालिस्ट. नंबर्स कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना डैडी को बहुत अच्छा लगता है. तो जब भी हम लोग अगर अगर कोई चीज जैसे बजट करना हो या कोई चीज कैलकुलेट करनी हो, तो हम डैडी को बोल देते हैं एंड डैडी 1 घंटा ही विल गेट बिजी जस्ट कीप कैलकुलेटिंग. Awesome. And can you imitate your father actually in front of? I've done it. I've done it on the show. I've done it in the trailer. You will see I've done it. Typical Johnny sir ka kuch. Yeah. They not at the moment. Always I get nervous always. But if you've seen the trailer में मैंने उनकी मिमिक्री की है, because Farhad sir was like, Jamie, मुझे थोड़ा सा जॉनी भाई चाहिए, तुमसे करवाना ही है. तो उन्होंने जिद करके मुझसे करवाया डैडी की मिमिक्री. मैंने बहुत अच्छा, फरहद भाई ने जैमी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया है. एवरीवेयर अलग अलग कुछ किया, कभी क्या बनाया, कभी क्या बनाया, कभी एक बार तो वार्ड बॉय बनाया, किधर वार्ड बॉय लड़का बनाया. तो टीचर होती है, उसके बाद अलग गेटअप में आती है, और ये वो बहुत फनी. और सभी, कोई एक्टर ऐसा नहीं जो खाली हो. हर एक्टर से काम करवा लिया उन्होंने, और हर एक्टर अपनी जगह बेहतरीन तरीके, बहुत अच्छा लग रहे हैं इसमें. अच्छा लगेंगे आपको, आप एंजॉय करेंगे उनको. बहुत अच्छा. मैं बिल्कुल अलग हूँ उसमें. मैं कॉमेडी हूँ, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, कॉमेडी तो है, लेकिन मुझे बिल्कुल उन्होंने अलग तरीके से यूज किया है. मैं पॉलिटिशियन हूँ. Actually, we need you in politics, sir. सब खुश हो जाएंगे. एक पॉलिटिशियन है उसमें, और इसके अंदर, और फिर उसके बाद में मेरे साथ क्या होता है, मेरा बच्चा मुझसे कैसा ये करते हैं, बदतमीजी करते हैं. फरदीन भी अपने, सॉरी, बार फरहद को फरहद भाई भी काम किया उन्होंने, फरहद भाई ने भी एक्टिंग की है. तो वो मेरे साथ कैसे बिहेव करते हैं, बहुत ही खतरनाक, वो विलन बने हुए हैं. और वो उसके अंदर भी, मैं भी सीरियस हूँ, मगर कॉमेडी निकलेगी आपको, या सीरियस चीज में कॉमेडी, या रोमांस है कॉमेडी, उसमें भी कॉमेडी आप देखेंगे. तो फरहद भाई ने कोशिश की कि हर जगह से कॉमेडी निकले. तो मैं बार बोलना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ रहा है कि कॉमेडी जो हम मिस कर रहे थे, इसमें मिस नहीं करेंगे. मैं जेमी से पूछती हूँ, what do you think was lacking in these years for somebody who's now the face of this generation, and for somebody who's grown up with him, and I'm sure you watched a lot of films, what do you think is actually lacking? Because कभी-कभी मुझे ना, वो मैं stand up comics सुनती हूँ, no offense to anyone, मेरे को joke नहीं समझ आता है. I have no clue whether am I supposed to laugh or what was it about. Yeah, I feel like with this generation, okay, there is a lot of different kinds of comedy that we've been introduced to. There's insult comedy, satire, below the belt, a lot of maybe sometimes just too vulgar, and yeah, different kinds of comedy. But young people enjoy it. I'm not saying it's a bad thing. There's an audience for everything. But I feel like there are very few comedy shows that you can watch as a family. So, you know, तो एक ऐसे I always feel like I wish I could sit and watch this with my family together. एक family entertainer वो missing है. हाँ, there are movies like गोलमाल जिसमें आप पूरी फैमिली जाकर आप देख सकते हो थिएटर के अंदर, लेकिन टीवी पर, OTT पर स्पेशली फैमिली कॉमेडी शोज नहीं है ना ज्यादातर. तो दिस आई एम प्राउड कि पॉपकॉर्न एक ऐसा शो है जिसमें आप पूरी फैमिली आप बैठ करके OTT पर आप पूरी फैमिली एंजॉय कर सकती है. यू नो, बच्चों से लेकर अडल्ट्स तक, ग्रोन अप्स, बूढ़े, सारे बैठकर देख सकते हैं. एंड दैट इज अ ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस शो. सो या, आई फील लाइक clean comedy is lacking these days, and but I'm happy that there is a show like Popcorn which gives you just that. It's clean comedy on an OTT platform, and that is a great thing for us. Awesome. Looking forward to that. And before we go, who was the toughest person to mimic for you, Jamie? And Johnny sir, आपके लिए toughest कौन रहा है mimic करने? क्या आप लोगों में वो कला है to mimic people? But who's been like the toughest person कि वो like ये ना हो पाएगा? मतलब हमारे को आर्टिस्ट नहीं, amongst people that you mimicked, both of you. मिमिक के लिए हाँ, सबसे टफ कौन था वैसे जिसकी मेमोरी? दोनों से पूछ रही हूँ.
मेरे को मिमिक्री करने में अमिताभ बच्चन जी बहुत टफ लगी, क्योंकि मेरी वॉइस जो है ना वो नहीं है, मेरी वॉइस में ज्यादा बेस नहीं है जी। तो उनकी एक आवाज निकालने में मेरी 4 आवाजें खराब हो जाती। अब बोला, फिर मैंने त्याग दे दी, बोला नहीं। अमित जी का मगर मत होता था एक टाइम जब मैं मिमिक्री वगैरह किया करता था, उस समय की बात है। फिर बाद में फिल्मों में बिजी होने के बाद में मिमिक्री तो बंद ही हो गया मेरा, इमिटेशन तो मैंने करना ही बंद कर दिया, टाइम ही नहीं मेरे को निकाल दिया उन्होंने। Jamie, you tell me, who's been the toughest one for you, and who's like a breeze that you can just mimic? Let's see. I think all are tough, to be very honest, because I keep changing them very quickly, na, the voices. तो बहुत ज़्यादा throat पे वो जोर होता है, pressure आ जाता है, stress, strain हो जाता है. So it is hard. I think Kangana Ranaut is tough because बहुत fast बोलना पड़ता है और pitch भी बहुत high है, at the same time tough है because डर भी लगता है करने के बाद कुछ बाद में कुछ हो तो ना जाए, you know, कुछ कॉल वॉल ना आ जाए या फिर कहीं कमेंट ना आ जाए या मेरी तरफ एक ट्वीट ना आ जाए, तो थोड़ा डर लगता है. That is a bit controversial. So but I really love obviously mimicking Asha ji, and that I think has become like a natural thing for me. It's like an everyday phenomenon to just wake up and become like Asha ji voice. It's just very normal. So because I've been doing it, that was the first thing I started doing. And मैं इतने सालों से उनकी मिमिक्री कर रही हूँ, तो yeah, I can do it easily. Recently, Daddy met Asha ji. Daddy, आप मिले ना आशा जी से? हाँ. तो उन्होंने क्या कहा, आप बताइए. मैं आशा जी से मिला अभी, तो आशा जी ने मुझसे कहा, अरे कैसे हो, अरे आप, मेरी बहुत तारीफ की उन्होंने. उसके बाद बोली, एक ने किसी ने बोला, अरे आशा जी, इनकी बेटी आपकी, हाँ उनको बोलो मेरी नकल मत करो, मेरे गाने गाओ. Wow, man, Jamie, so cool. तो जाते जाते सबको आशा जी की आवाज में, सुरीली आवाज में बोल दो कि हम आप देखें The Lever Show. अच्छा, देखो ना लोगों ने बोतल की बोतल खत्म कर दी तो कुछ ना हुआ, मगर जब लीवर्स पॉपकॉर्न में आए तो हंगामा हो गया. हाँ 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 हाँ, हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया. डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखिएगा, 17 मार्च को आ रही है पॉपकॉर्न. Oh, stop! Wow. Take a bow, man. Take a bow, both of you. Chip up the old block. Thank you so much, sir. Pleasure meeting you both. Thank you so much. Thank you. Rockstar, Jamie. Thank you. Thanks. Bye. If you've liked this interview, please like, share, and subscribe. Follow me on Twitter and Instagram.